ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری کتاب العلم صفحہ نمبر 99۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ اندرما ہاؤس اسکیم موبائل ایپ کا چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ہاتھوں افتتاح۔ اصل مستحقین کو اسکیم سے مستفید کرانے کے احکامات۔ ریاستی حکومت کی جانب سے تشکیل کردہ مخصوص کمیشن BCD کا نظام آباد کا دورہ۔ جامع رپورٹ عوامی رائے کے مطابق پیش کی جائیں گی۔ BCD کمیشن مسلمانوں کو آبادی کے تناسب کے لحاظ سے تحفظ فراہم کرنے کانگریس قائدین کی نمائندگی۔ ریاست میں عوامی حکمرانی نہیں، پولیس راج ہے۔ حکومت کو اس کے وعدے یاد دلانے پر اپوزیشن قائدین کو پولیس کر رہی ہراساں۔ سابقہ MLA باجی ریڈی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا و دیگر اہم قائدین نے کیا اندرما ہاؤس سروے موبائل ایپ کا آغاز۔ پہلی قسط میں ہر اسمبلی حلقے میں 3500 کی شرح سے ریاست بھر میں 4.50 لاکھ مکانات کی منظوری دی جائیں گی۔ ریونت ریڈی نے کیا انکشاف۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، وزرا سرینواس ریڈی، جوپلی کرشنا راؤ، پونم پربھاکر، MLC مہیش کمار گونڈ نے اندرما ہاؤس سروے موبائل ایپ کا آغاز کیا، جس کی شناخت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ حکومتی مشیر محمد علی شبیر، حکومت چیف سیکرٹری اے شانتی کماری، پلاننگ کمیشن کے نائب صدر چنا ریڈی اور دیگر نے رسمی طور پر اس کی نقاب کشائی کی۔ کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو، ایڈیشنل کلکٹرز انکت، کرن کمار اور دیگر نے نظام آباد انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس میں براہ راست نشریات کے ذریعے پروگرام دیکھا۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے انکشاف کیا کہ پہلی قسط میں ہر اسمبلی حلقے میں 3500 کی شرح سے ریاست بھر میں 4.50 لاکھ مکانات کی منظوری دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ گھروں کی الاٹمنٹ میں غریب خواتین، بیواؤں، معذوروں، زرعی مزدوروں، خواجہ سراؤں، قبائلی اور دلت خاندانوں کو ترجیح دی جائیں گی۔ بغیر کسی جوڑ توڑ کے مستحقین کا انتخاب کرنا، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سروے ایپ کے ذریعے انتخاب کے لیے اقدامات کیے گئے اور کہا کہ ریاست بھر کے عہدیداروں کی ٹیموں میں تمام دیہاتوں، میونسپل ڈویژن اور وارڈوں کا دورہ کر کے اندرما ایپ کے ذریعے سروے کیا جائے گا۔ کم از کم 400 مربع فٹ رقبے پر گھر بنانے کے لیے حکومت مستحقین کے 4 کھاتوں میں 5 لاکھ روپے فی گھر کی شرح سے فنڈز فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسے قسطوں میں جمع کرایا جائے گا۔ عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ اندرما ہاؤس اسکیم میں بے ضابطگیوں کی کوئی گنجائش رکھے بغیر حکومتی رہنما خطوط کے مطابق مؤثر طریقے سے سروے کریں، جو حکومت کی جانب سے غریب خاندانوں کو سماجی احترام فراہم کرنے اور ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے عزائم کے ساتھ شروع کیا جائے۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر انکت، ٹریننگ کلکٹر سنکیت کمار، دیگر بھی موجود تھے۔
ఈ రెండవ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టే సందర్భంగా తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో, పట్టణ ప్రాంతంలోని బస్తీలలో ఉండే పేదవాళ్లకు ఆత్మగౌరవంతో బ్రతకాలన్నది ఒక కళ. ఈ కళని ఈనాడు కాదు, ఆనాడే శ్రీమతి ఇందిరమ్మ గుర్తించింది. అందుకే ఇందిరమ్మ రోటీ కపడా మకాన్ ఈ నినాదంతో సీలింగ్ అగ్రికల్చర్ సీలింగ్ యాక్ట్ తీసుకురావడం ద్వారా ఈ భూములన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వం తీసుకొని ప్రధానంగా దళితులకు, గిరిజనులకు, బలహీన వర్గాలకు जामा रिपोर्ट अवामी राय के मुताबिक पेश की जाएंगी। कमीशन के चेयरमैन बी वेंकटेश्वर बीसी राव का बयान। मुकामी इदारों में बीसी के लिए रिजर्वेशन के तनासुब से दरख्वास्तों की वसूली। रियासत तेलंगाना में बल्दियाती इदारों के जरिए फ्राहम किए जाने वाले रिजर्वेशन के तनासुब से सियासी जमातों, बरादरियों और अवाम की दरख्वास्तें वसूल करने के लिए बीसी डेडिकेटेड कायम किया गया। कमीशन ने निजामाबाद के मुश्तरिका निजामाबाद कामारेड्डी असला के बारे में जुमेरात को निजामाबाद में मरबूत जिले दफातर के अहाते में राय आमा का जायजा लिया। कमीशन के चेयरमैन बी वेंकटेश्वर राव और सेक्रेटरी ने मुतल्लिका जात की अंजुमनों के नुमाइंदों और अवाम से तहरीरी दरख्वास्तें हासिल की और उनके ख्यालात जाने। कमीशन के चेयरमैन जो मरबूत जिले दफातर के अहाते में पहुंचे, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने गुलदस्ता पेश करते हुए इस्तकबाल किया। नायब ब्राह्मण एसोसिएशन, विश्व ब्राह्मण एसोसिएशन, बीसी वेलफेयर एसोसिएशन, मुदिराज, मेडारी, पसाला एसोसिएशन, वुडेरा एसोसिएशन, कारीगर जात एसोसिएशन, कुम्हार, यादव, राजक्का, वीर भाद्रया, नखाशी, वाल्मीकि, मुस्लिम अक़लियत, बागबान, मीरा और दीगर अंजुमनों के नुमाइंदों ने तहरीरी याददाश्त पेश की। जात के माशी, समाजी, तालीमी, रोजगार और सियासी पहलू दरख्वास्तें कमीशन के चेयरमैन को सूरत हाल की वजाहत करते हुए पेश की गई। खास तौर पर उन अवाम को आबादी की बुनियाद पर रिजर्वेशन फ्राहम करना जो अपनी रोजी रोटी के लिए जात पात के पेशों पर इन्हिसार करते हैं। बीसी को आबादी के तनासुब के मुताबिक रिजर्वेशन फ्राहम करना, उन जातों को बल्दियाती इदारों में रिजर्वेशन की तजवीज़ देना जिनकी अब तक बल्दियाती इदारों में कोई जगह नहीं, उन्हें कंपनियों को कंट्रोल करना चाहिए और पसाला नस्ल को एमबीसी की फहरिस्त में शामिल करके मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट करना चाहिए। ये अच्छा होगा कि कारीगरों और जात पात के ग्रुपों को ए, बी, सी, डी के ज़मरे में रखा जाए। बीसी के लिए रिजर्वेशन की हद खत्म की जाए। दीगर रियासतों की तरह तेलंगाना में भी मिडारी जातों को एसटी की फहरिस्त में शामिल किया जाए। मुस्लिम अक़लियतों को आबादी की बुनियाद पर बल्दियाती इदारों में 12.5% रिजर्वेशन। कम्युनिटीज के नुमाइंदों ने कमीशन को दरख्वास्तें जमा कराएं कि बागबान जात को तस्लीम किया जाए। इस मौके पर कमीशन चेयरमैन रिटायर्ड आईएएस अफसर बी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि बीसी वक्फ कमीशन रियासती हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तश्कील दिया गया है कि बल्दियाती इदारों में बीसी के तहफ़्फ़ुज़ात कैसे होने चाहिए। హైకోర్టు లోపల ఇది రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేసి బీసీ కమిషన్కు డెడికేట్ కమిషనర్ యాక్టివిటీస్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదు, సపరేట్గా ఉండాలని చెప్పి బిల్ ఫైల్ చేస్తే గవర్నమెంట్ దానికి అంగీకరించి లాస్ట్ మంత్ 4th నాడు డెడికేటెడ్ కమిషనర్ కాన్స్టిట్యూట్ అయింది. ముఖ్యంగా డెడికేటెడ్ కమిషనర్ ఒక పరిధి ఏంటంటే ఈ లోకల్ బాడీస్ గ్రామ పంచాయత్, మండల పరిషత్, జిల్లా పరిషత్, అది కాకుండా అర్బన్ బాడీస్, మున్సిపాలిటీస్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో బీసీ రిజర్వేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది నిర్ణయించడానికి. అయితే ఆ సందర్భంగా ఈ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో అన్నీ కూడా విజిట్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇప్పటి వరకు ఇది 8వ జిల్లా, ఇంకా 2 జిల్లాలు ఉన్నాయి బ్యాలెన్స్, ఆదిలాబాదు, కరీంనగర్. అన్ని దీంతో పాటు అయిపోయిన తర్వాత రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. रियासत में कोई अवामी हुक्मरानी नहीं, सिर्फ पुलिस राज है। कांग्रेस पार्टी वादों के साथ बरसरे इख्तिदार आई है। अगर उनसे वादे पूरे करने को कहा गया तो कायदीन को गिरफ्तार कर लिया जा रहा। साबिक एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने ट्वीट के जरिए साबिका वजीर हरीश राव और एमएलए पी कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारियों की सख्त मजम्मत की। साबिक एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि रियासत में अवामी हुक्मरानी नहीं, सिर्फ पुलिस गवर्नेंस चल रही। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की। साबिका वजीर हरीश राव और एमएलए पी कौशिक रेड्डी की गैर कानूनी गिरफ्तारियों की सख्त मजम्मत की।
और कहा कि गिरफ्तारियों के नाम पर रियासत की अवाम और लीडरान को दहशत ज़दा किया जा रहा है। ఈరోజు హరీష్ రావు గారిని తర్వాత కౌశల్ రెడ్డి గారిని ఇతర బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముఖ్య నాయకులను అరెస్ట్ చేయడం దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. ఈ పరిపాలన చూస్తూ ఉంటే 1 year నుంచి ఇది ప్రజా పరిపాలన కాదు, ఇది పోలీస్ పరిపాలన. మేము చూస్తున్నాం అబద్ధమైన హామీలు ఇచ్చి 60,000 హామీలు ఇచ్చి ఒక్క హామీ కూడా 100% పూర్తి చేయకుండా అదే రోజుకుగా హామీని 10-20% చేసుకుంటూ మేమేదో చేసామని పబ్లిసిటీ తీసుకుంటున్నాడు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు. మరి ఈ విధంగా ఒకరోజు కేటీఆర్ అరెస్ట్ అంటారు, ఒకరోజు హరీష్ రావు అరెస్ట్ అంటారు, మరో రోజు ఎమ్మెల్యే అరెస్ట్ అంటారు. అరెస్ట్ అంటే వేరే పనులు రావాలి మీకు, ఎందుకంటే మీకు చేయగలరు. కాబట్టి నేను మనం చేస్తున్న ప్రజలకి ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం చేసేది ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన కాదు, పోలీసు పరిపాలన. నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. నీ మీద డిపార్ట్మెంట్ మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళినటువంటి కౌశల్ రెడ్డి గారిని మీరు ఉల్టా చోటు కొత్త దాడి అన్నట్టు ఆయన అరెస్ట్ చేయడం ఏంటి నాకు అర్థం కాదు. ఆయన పరామర్శలకు వెళ్ళినటువంటి హరీష్ రావు గారిని అరెస్ట్ చేయడం వెళ్ళడం ఏంటి? ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే కుట్రపుట్టున చేసే కార్యక్రమాలు వీరేమి లేవు. నీకు పరిపాలన చేయడానికి తక్కువ దేవాలయం పెట్టుకుంది, కానీ ఈ విధంగా భయప్రార్థనలు చేసి ప్రజల్ని నాయకుల్ని ఎన్నడూ కొనసాగుతారు. మీరు పూర్తిగా తెలంగాణ ప్రజల్ని అర్థం చేసుకోవాలి, రోజురే కార్యక్రమాలు అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రభుత్వం వల్ల आबादी के तनासुब से मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा, कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन वफ़द की BCD कमीशन से नुमाइंदगी। रियासत तेलंगाना में BCE ज़मरे के तहत मुसलमानों को मुकामी इदारे जात में लोकल बॉडीज में आबादी के तनासुब के लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने और मुख्तलिफ सरकारी कॉरपोरेशनों में भी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के सिलसिले में आज निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के सरकुर्दा अक़लियती क़ायदीन के एक नुमाइंदा वफ़द ने, जो जनाब सैयद नजीब अली एडवोकेट, सीनियर कांग्रेस कायदीन एम.ए. फ़हीम, साबिक़ डिप्टी मेयर मोहम्मद हारून खान, कॉर्पोरेटर व रुकन रियासती पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अशफाक अहमद खान, एडिटर रोजनामा निज़ामाबाद, मॉर्निंग टाइम्स मोहम्मद समीर अहमद, जोनल सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सदर मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल मुखीद, साबिक़ कॉर्पोरेटर व सदर BC संगम पर मुश्तमिल था। आज डेडिकेटेड BC कमीशन का दौरा और अवामी नुमाइंदगी की समाअत के मौके पर सदर नशीन कमीशन B वेंकटेश्वर राव IAS रिटायर्ड के रूबरू नुमाइंदगी करते हुए बताया कि तेलंगाना में मुसलमानों की 12% आबादी मौजूद है। अगरचे कि तालीम और रोजगार में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होते हैं, ताहम अवामी नुमाइंदगी के शोबे में और बिलखुसूस मुकामी इदारे जात में लोकल बॉडीज में तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने की ज़रूरत है। कई मुकामात पर मुसलमानों की नुमाइंदगी सिफर के बराबर है। अगर मुसलमानों की तनासुब के लिहाज से नुमाइंदगी मौजूद हो तो हमारे अवामी मसाइल और लोकल बॉडीज के तहत हमारी आबादियों में बुनियादी वसाइल की फ्राहमी और दीगर मसाइल की एकसूर अमल में लाई जा सकती है। वफद ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात की फ्राहमी के जरिए हमारे नुमाइंदे हमारे मसाइल की भरपूर तर्जुमानी कर सकते हैं। वफद ने बताया कि सुधीर कमीशन ने अपनी सिफारिशत में आबादी के लिहाज से मुसलमानों को BCE ज़मरे के तहत तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने की सिफारिश की है, जिसको रूबे अमल लाया जाए। वफद ने बताया कि रियासत भर में मौजूद सरकारी कॉरपोरेशनों में भी मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के इक़दामात की ज़रूरत है। कई अवामी कॉरपोरेशनों में मुसलमान मौजूद नहीं है, जबकि अवामी शोबों में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी की ज़रूरत है, जिसको पूरा किया जाना चाहिए। हक, मसावत और इंसाफ और एकसा तरीके के मौक़े फ़राहम करने के लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों को भी तमाम ही सरकारी शोबों में नुमाइंदगी का मौका फ़राहम किया जाए। सदर नशीन कमीशन B वेंकटेश्वर राव की क़ियादत में मौजूद कमीशन के अरकान B साइलू, सेक्रेटरी कमीशन, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर्स किरण कुमार, अंकित कुमार और दीगर अराकीन मौजूद थे। कमीशन ने वफद को समाअत करने के बाद तयक़ुन दिया कि वो इन उमूर को अपनी सिफारिशात में शामिल करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के हक़ में राह हमवार करेंगे। आज निज़ामाबाद में BC डेडिकेटेड कमीशन के चेयरमैन B वेंकटेश्वर राव IAS की क़ियादत में एक कमीशन का यहाँ पर दौरा हुआ और ख़ास तौर पर BC तबक़ात को मुख्तलिफ़ ज़ुमरों में नुमाइंदगी के सिलसिले में उन्होंने यहाँ पर सिफारिशात कबूल करने की। आज इस मौके पर हमने नुमाइंदगी करते हुए जनाब फ़हीम साहब, साबिक़ डिप्टी मेयर, सुमेर अहमद साहब,
हारून खान साहब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर, अशफाक अहमद खान साहब एडिटर निज़ामाबाद मॉर्निंग टाइम्स, मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब सदर मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी, मुफीद साहब बीसी संगम के सदर, हम सब ने मिलकर कमीशन के रूबरू नुमाइंदगी की और हमने बताया कि हमारी पॉपुलेशन हमारे तनासब के हिसाब से हमको लोकल बॉडीज़ के अंदर अवामी जितने जो है शोबे हैं उसमें हमको नुमाइंदगी के मौके दिए जाने चाहिए और उस मौके पर हमने पूरी तफसीलात से उनको वाकिफ़ कराया। उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने सुधीर कमीशन की सिफारिशात का भी हवाला दिया कि जिसकी रोशनी में जो मुस्लिम बीसी ही तबका है, ख़ास तौर पर मुसलमानों की भरपूर नुमाइंदगी के लिए उन्होंने सिफारिश की और इस मौके पर कमीशन के चेयरमैन ने तयक़ुन दिया कि वो हमारी पेश की गई नुमाइंदगी पर तफसीली गौर व खोज करने के बाद जो सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी उन सिफारिशात के अंदर इन नुकात को भी शामिल करेंगे। ख़वातीन वो दो शिजाओं के फैशन का बाएतमाद वो भरोसामंद नाम जमजम सूट्स। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर मरहबा सुपरमार्केट के पीछे नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। आपकी ईद व तकारीब छोटे बड़े फंक्शन के लिए हमारे यहाँ ख़वातीन वो दो शिजाओं के दीदा से मलबूसा जो आपकी पहली पसंद होगी और आपको जाज़िबे नजर बनाने वाला स्टॉक दस्तयाब है। जमजम सूट्स की खुसूसी स्पेशल ऑफर 5 दिसंबर ता 20 दिसंबर 1000 रुपये 4 पीस कॉटन ड्रेस, 1400 रुपये 3 पीस वर्क ड्रेस मटेरियल, 1800 रुपये 3 पीस हेवी वर्क ड्रेस मटेरियल, 2000 रुपये 2 पीस पाकिस्तानी फुल वर्क ड्रेस मटेरियल, 2800 रुपये 2 पीस फर्शी लहंगा, 3500 रुपये 2 पीस रशियन प्लाजो गरारा, 1300 रुपये 2 पीस बुरखा। ऑफर सिर्फ 5 ता 20 दिसंबर, तो जल्दी करें। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7987168967 9390414785। इस माह की 7 तारीख को ऑटोस बंद को ऑटोस यूनियन कामयाब बनाए। असम्बली इंतखाबात में सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से ऑटो ड्राइवर से किए गए वादों को फौरी पूरा करें। IFTU जिला सेक्रेटरी ऑटो यूनियन के रहनुमा शिव कुमार का मुतालबा। मोपाल मंडल मुस्तक़र में तेलंगाना ऑटो एंड मोटर ड्राइवर्स यूनियन IFTU ने 7 दिसंबर को मुनाक़िद रियासती ऑटो बंद को कामयाब बनाने के लिए एक वसी मुहिम चलाई। इस मौके पर IFTU जिला सेक्रेटरी ऑटो यूनियन के रहनुमा M शिव कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने ऑटो ड्राइवरों और मोटर गाड़ियों के ड्राइवरों को 15,000 रुपये देने का वादा किया था। उन्होंने मुतालिबा किया कि इस वादे पर फौरी अमल दरामद किया जाए जो अभी तक पूरा नहीं किया गया और कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को मुफ्त बस की सहूलत फराहम करने के नतीजे में ऑटो ड्राइवरों को नुकसान पहुंचा है और उनकी रोजी रोटी में खलल पड़ा है। उन्होंने कहा कि RTA मुख्तलिफ पाबंदियां लगाकर ऑटो ड्राइवरों को परेशान कर रहा है। कुछ लोग यूनियन लीडर जाहिर करके ऑटो ड्राइवरों को हिरासत करें। उन्होंने ऑटो ड्राइवरों और मालिकान पर जोर दिया कि वो 7 दिसंबर को रियासत गिर बंद को कामयाब करें और हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मोहन, सलीम, सुरेश, भूमैया दीगर भी मौजूद थे। 15,000 రూపాయల జీవనోభృతి ఇస్తానని చెప్పింది. ఇంతవరకు కూడా ఏ ఆటో కార్మికుడికి ఇవ్వలేదు. అదేవిధంగా ఆటో కార్మికులకు మన ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్లు వారి చదువుల కోసము ఉపాధి కల్పించాలని ఈ ఆటో కార్మికులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా సంక్షేమ బోర్డు ఆటో కార్మికులకు సంక్షేమ బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలని మరి అదేవిధంగా వాళ్ళు తెచ్చుకున్నటువంటి ఫైనాన్సులు ఆటోలు నడుపుతున్నారు వాళ్లకు ఈఎంఐలు కట్టే పరిస్థితి లేదు. వారి ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. మీకు మహిళలకు ఉచిత బస్సు పెట్టినావు ఓకే, కానీ కార్మికులకు వారి జీవనభృతి వెళ్ళడం లేదు. అదేవిధంగా వారికి సంవత్సరానికి 15,000 రూపాయలు జీవనభృతి కల్పించాలా, మరి వాళ్ళకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వాలా, వారికి ఈఎంఐలు కట్టడానికి ఇబ్బంది అవుతున్నది.
దాని ఉద్దేశంతో मेंडोरा मंडल मुस्तकर में हादसाती तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह मकान जलकर खाकसतर। बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार ने मकान का किया मुआयना और इंद्रमा के तहत मकानात देने का वादा किया और कहा कि हुकूमत की जानिब से वो उनका हर तरह से साथ देंगे। बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार ने मेंडोरा मंडल मुस्तकर में जले हुए मकान का मुआयना किया। हल्का असम्बली बालकोंडा के मेंडोरा मंडल मुस्तकर में एक मकान जिसमें 4 खानदान से ताल्लुक रखने वाले टी सायन्ना, जी श्रीनिवास, जी देवमालू और जी देवेंद्र रहते थे। हादसाती तौर पर शॉर्ट सर्किट की जद में आकर मुकम्मल तौर पर घर जल गया। उनके अहले खाना की तकरीबन 10 लाख रुपए की रकम कपड़ों समेत भी जल गई। बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार ने आज इनके घर जाकर इन सबको तसल्ली दी और हौसला दिया। उन्होंने उनसे कहा कि फिक्र ना करें। उन्होंने इंदिरमा के तहत मकानात देने का वादा किया। सुनील रेड्डी ने कहा कि वो हुकूमत की जानिब से हर तरह से उनका साथ देंगे और हर खानदान को 10,000 रुपये माली इमदाद देने का वादा किया। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुन मौजूद थे। घरेलू तनाज़ा से तंग आकर एक शख्स की नवीपेट रेलवे गेट पर ट्रेन की जद में आकर खुदकुशी की कोशिश। रेलवे गेटमैन की हाजिर दिमागी और ट्रेन पायलट को पैगाम भेजकर नाकाम बनाया खुदकुशी को। रेलवे पुलिस ने उस शख्स को किया गिरफ्तार। नवीपेट मंडल मुस्तकर के दरियापुर में निजामाबाद की तरफ आ रही ट्रेन के सामने बाइक पर सवार होकर खुदकुशी की कोशिश करने के वाक़ये ने हलचल मचा दी। जुमेरात की सुबह पेश आने वाले वाक़ये की तफसीलात कुछ यूँ हैं। भिंगल गांव का रहने वाला जगदीश कुछ अरसे से अपने अफराद ख़ानदान के साथ नवीपेट मंडल मुस्तकर में रह रहा है। ताहम ख़ानदानी तनाज़ात की वजह से वो अफसरदा हो गया और इसने खुदकुशी करने का फ़ैसला किया और नवीपेट में रेलवे फाटक के करीब से रेलवे पटरियों पर 2 व्हीलर गाड़ी से आने वाली साईनगर तिरुपति हफ्तेवार ट्रेन से टकराने की कोशिश की। रेलवे फाटक के हेल्पर जिसने मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान को आने वाली ट्रेन के सामने तेज़ रफ्तारी से आते हुए देखा। उसने ट्रेन के पायलट को इत्तला दी। फौरी तौर पर ट्रेन के पायलट ने ट्रेन रोक दी। इसकी इत्तला रेलवे पुलिस को दी गई। रेलवे पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार किया। नौजवान ने बताया कि माली मसाइल और ख़ानदानी झगड़े थे। नौजवान को बीवी और 3 बच्चे। पुलिस ने बताया कि रेलवे फाटक के मददगार और ट्रेन के पायलट को अलर्ट कर दिया गया और हादसा टल गया। खतरा टलते ही मुकामी अवाम ने राहत की सांस ली। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंदिरमा हाउस स्कीम मोबाइल ऐप का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। असल मुस्तहिकीन को स्कीम से मुस्तफीद कराने के अहकामात। रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा मखसूस कमीशन BCD का निजामाबाद का दौरा। जामा रिपोर्ट अवामी राय के मुताबिक पेश की जाएंगी। BCD कमीशन मुसलमानों को आबादी के तनासुब के लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने कांग्रेस कायदीन की नुमाइंदगी। रियासत में अवामी हुक्मरानी नहीं पुलिस राज है। हुकूमत को उसके वादे याद दिलाने पर अपोजिशन कायदीन को पुलिस कर रही हिरासा। साबिका MLA बाजी रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़ई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।